Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start revision of lesson number 3, multiplication. So first we will see what you had learned our last classes. So what you had learned our last classes, first you had learned about multiplication by 2-digit number. Then after we had learned recall exercise. Then property of multiplication. Then after we had learned multiplication by 10, 100 and 1000. Then after multiplication by 200, 300, so on. Then 200, 300 and so on. Okay. Then after we had learned multiplication by 3-digit number. In this topic we had learned about 3-digit number multiply by 3-digit number. Then now our today's topic is story sum in multiplication. So for that we will start example number 1. The apples grow in farm are packed in 302 boxes. Each box contains 256 apples. So how many apples are there in all? एक बॉक्स में कितने एप्पल है? 256 एप्पल है. ऐसे हमने मतलब उन्होंने कितने बॉक्स फिलअप किए है? 302 बॉक्सेस उन्होंने क्या किए? पैक किए. ठीक है. सो हाउ मेनी एप्पल्स? ऑल, सब मिला के कितने एप्पल होंगे? फॉर दैट वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. one box contain 256 apples. So 302 boxes contain. How many contains? 302 multiplied 256. So after doing multiplication we will get answer 77,312. कितना आंसर मिल गया? 77,312. So how many all apples? कितने एप्पल्स है? 77,312 apples in the farm. Okay. Now we are starting exercise 3.5. So example number 1. A dealer buys 285 keyboards. How many keyboards purchased? 285 keyboards. ईच कीबोर्ड कॉस्ट, एक कीबोर्ड की कॉस्ट कितनी है? 665 रुपीज़. सो हाउ मच डज ही पे? एक कीबोर्ड की कॉस्ट कितनी है? 665 है. वैसे उन्होंने कितने कीबोर्ड खरीदे हैं? 285 कीबोर्ड खरीदे हैं. सो हाउ मेनी ही पेड फॉर ऑल? सो फॉर दैट वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. सो लुक एट देयर. 1 कीबोर्ड इक्वल टू ₹665. ओके. एक कीबोर्ड की कॉस्ट कितनी है? 665 रुपीज़ है. सो हाउ मेनी ही परचेज? बाय 285 कीबोर्ड. सो वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. 285 मल्टीप्लाई 665. सो लुक एट देयर. 285 मल्टीप्लाई बाय 665. दिस इज द keyboards and this is the price. 5 into 5 25. So 2 is the carry and 5 is writing in one place. 8 into 5 40 and 40 plus 2 42. So 2 is writing in 10 place and 4 is carry on the 100 place. 5 into 2 10 and 10 plus 4 14. Okay. Now we will start that. 6 is the place of 10, so we will put 0 on the 1 place. ठीक है. 6 into 5 30. So 0 is writing in 10 place and 3 is carry. Okay. 6 into 8. 6 into 8. 6 into 8. How much student? 48. And 48 and 48 plus 3
48 plus 3, 51. So 1 is writing here and 5 is the carry. 6 into 2, 12 and 12 plus 2, 17. Okay. Now we will that 6 is the place of 100. So we will put 0 on the 1 place and that 0 on the 10 place. Now 6 into 5, 30. 3 is the carry. Okay. 6, we are writing 0 here and 6 is the carry. 6 into 8, 48. 48 plus 3, 51. So 1 is writing here and 5 is the carry. 6 into 2, 12. 12 plus 5, 70. So now we will do addition. 5 plus 0, 5. 5 plus 0, 5. 2 plus 0, 2. 2 plus 0, 2. 4 plus 1, 5. 1 plus 7, 8. 8 plus 1, 9. 1 plus 7, 8 and 1. So how much getting? 1,89,525. So how much he paid money? He paid money for a 285 keyboards. उसने कितने पे किए हैं मनी? 1,89,525 for a 285 keyboards. Okay. Now look at in example number 2. The cost of mouse is rupees 257. What is the cost of 352 mice? Okay. एक माउस की कॉस्ट कितनी है? 257 है. तो उन्होंने कितने कीबोर्ड माउस खरीदे हैं? 352 माउस खरीदे. तो उसके लिए उन्होंने कितने पे किए हैं? लुक एट देयर. One mouse cost rupees 257. So cost of 352 mouses कितनी होंगी? So 352 multiply 257. So after doing multiplication, how much getting? 90,464. So उन्होंने 352 माउस के लिए कितने मनी पेड की है? 90,464. Okay, now look at in example number 5. If one notebook contain 260 pages, so how many pages do 185 notebook contains? ठीक है, एक नोटबुक में कितने पेजेस है? 260 पेजेस है. So like that how many notebook? 185 notebooks. So total notebook total how many page? So for that we will do multiplication. Look at there. One notebook contain page. One notebook में कितने पेज है? 260 पेजेस है one notebook में. So 185 notebooks contain pages. 185 notebook में कितने पेजेस होंगे? 185 into 260. So how many pages? After doing multiplication, we will get 48,100. So कितने पेजेस है? 185 बुक्स में कितने पेजेस होंगे? 48,100. Now we will start example number 10. Meena makes 450 paper bags in a day in her factory. So how many paper bags can she make in 365 डेज? ठीक है, मीना जो है वो क्या करती है? पेपर बैग्स की उसकी फैक्ट्री है. एक दिन में वो 450 बैग्स बनाती है. तो 365 डेज में वो कितने बैग्स बनाएगी? फॉर दैट वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. सो लुक एट हियर. मीना मेक्स पेपर बैग्स इन अ डे. हाउ मच? 450. सो 365 डेज मीना मेक्स पेपर बैग्स. 365 डेज में मीना कितनी बैग्स बनाएगी? 365 मल्टीप्लाई बाय 450. ठीक है, 450. सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन we will get 1,64,750. कितने बैग्स बनाती है वो 365 डेज में? 1,64,750. So she
making in 365 days bags 1,64,000 to 1,64,750. कितने बैग्स बनाती है? 1,64,750 बैग्स शी इज मेकिंग इन द 365 days. Now we are starting our next topic, estimating product. Okay, rounding can be used to estimate product. This is useful in situated where exact answer is not required. It is also useful for a checking if the answer obtained by actual multiplication is responsible. एस्टिमेटिक प्रोडक्ट्स मतलब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसकी क्या निकालेंगे, राउंडेड वैल्यू निकालेंगे. सो फॉर दैट एग्जांपल, एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 28 and 25. सो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ राउंडिंग नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 28 and 25? 30. कितना है? दोनों का भी नियरेस्ट वैल्यू कितने हैं? राउंडिंग वैल्यू 30 है. सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन 30 into 30 वी विल गेट आंसर 900. कितना आंसर मिल गया? 900. एंड आवर एक्चुअल वैल्यू क्या है? 28 25 है. सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 700. एक्चुअल वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना मिल गया? 700. एंड 30 into 30 कितना मिलता है? 900. यू फाइंड द देयर इज अ considerable difference between the answer. Let us try another techniques. Let us round one number up and the other down. ठीक है, हमने क्या किया है? एक वैल्यू को डाउन किया है, अप किया है. डाउन मतलब 28 के अप मतलब क्या होगा? 28 के ऊपर होगा. अप मतलब क्या होगा? 28 के ऊपर. मतलब 28 की राउंडेड वैल्यू हमने क्या ली है? 30 लिए, मतलब वो क्या है? अप वैल्यू है. एंड 25 के हमने डाउन वैल्यू लिए. डाउन मतलब 25 से नीचे राउंडिंग वैल्यू. So 30 into 200. So how much getting? 600. So you can see that this method give the answer that is the closer to the actual answer. क्या है closer actual? 600 और 900? 600 700 के एक्चुअल मतलब पास में क्या है? 900 है कि 600 है? So 600 is nearest to the 700. Now look at in example number 2. Estimating the product of 275 and 135 rounding to the nearest 100. यहाँ पे हमें क्या करना है? नियरेस्ट 100 राउंडिंग वैल्यू निकालना है. सो वी हैव, सो लुक एट देयर 275. ये किसके बीच में आता है? एक तो 200 नहीं तो 300 के बीच में आता है. सो 275 की क्या होगी? डाउन वाली वैल्यू होगी. और 300 वो क्या होगी? अप वाली वैल्यू होगी. हमने क्या ली है? 275 की अप वैल्यू ली है, 300 लिए. ठीक है. 135 की राउंडिंग वैल्यू क्या होगी? 100 होगी, नहीं तो 200 होगी. ठीक है. 135 की इसके बीच में आता है, 100 एंड 200 के बीच में आता है. सो हमने यहाँ पे 100 लिया है राउंडिंग ऑफ डाउन. क्यों डाउन है? क्योंकि 100 135 से छोटा है, इसलिए ये क्या है? डाउन है. सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 30,000. कितना मिल गया? 30,000. एंड एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, हमारा एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया है? 275 मल्टीप्लाई 135 इक्वल टू 37,125 है. हमारी क्या है? एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है. ओके. नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.6. सो एग्जाम्पल नंबर ए. बाय
राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10, हमें क्या निकालना है, राउंडिंग वैल्यू निकालना है नियरेस्ट 10 की, ठीक है। सो लुक एट इन एग्जाम्पल नंबर 1, 76 मल्टीप्लाई 18, क्या है, 76 मल्टीप्लाई 18 है, ठीक है। दिस एग्जाम्पल वी विल बी सॉल्व इन द टू मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किसके नियरेस्ट है जो एक्चुअल वैल्यू है। सो लुक एट देयर, 76 किस कौन से दो नंबर के बीच में आता है, एक तो 70 और दूसरा आता है 80, दोनों के बीच में आता है। लेकिन 76 हमने पहले क्या लिखा है, 80 लिखा है, ठीक है। उसके बाद 18 है, 18 किसके बीच में आता है, एक 10 और 20 के बीच में आता है, तो हमने क्या लिया है यहाँ पे, 20 लिया है 18 के नियरेस्ट वैल्यू। सो 80 इंटू 20 कितना होता है, 1600, कितना होता है, 1600। नाउ सेकंड मेथड, 76 के हमने राउंडिंग वैल्यू लिए है 70, ठीक है, और 18 की राउंडिंग वैल्यू ली है 10। सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 700, ठीक है, कितना मिल गया, 700। नाउ वी विल डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है, 76 इंटू 80। सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट आंसर 1368। हमें आंसर कितना मिल गया है, 1368। सो लुक एट देयर दैट 1368 ये किसके नियर है, किसके नियर है, 1600 के नियर है। सो 1368 नियर टू द 1600, सो 1368 राउंडिंग वैल्यू ऑफ 1600. Now we are starting example number 5, 44 into 55. Okay, which number, 44 into 55. So that example we will be solving the two method. First method 44. Okay, 44 ये किसके बीच में आता है, 40 और 50 के बीच में आता है। सो 44 के लिए हमने क्या लिया है, 40 लिया है, और 55 किसके बीच में आता है, 50 50 और 60 के बीच में आता है, तो हमने क्या लिया है, 60 लिया है। सो 40 इंटू 60, 40 इंटू 60 कितना होता है, 2400, 2400, ठीक है, 2400 हमारा क्या आ गया, राउंडिंग वैल्यू आ गई। देन सेकंड मेथड ने हमने क्या किया है, 44 को हमने 40 लिया है और हमारा 55 है, उसको उसकी राउंडिंग वैल्यू कितनी ली है, 50 ली है। सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 2000, कितना आ गया, 2000 आ गया। नाउ वी विल डू एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, 44 इंटू 55. After doing multiplication 45 into 55 we will get answer 2420. हमें आंसर कितना मिल गया, 2420. So now look at in method 1 and 2 which is the nearest value. Nearest value is the 2400. So 2420 is the nearest value of 2400. So 2420 rounding value of 2400. Okay, now we are solving example number is question number B. By rounding of the nearest 100, हमें कौन सी nearest value निकालनी है, 100 की। 453 multiply 152, 453 multiply by 152, sorry, okay, 453 multiply by 152. So look at there, 152 and 453 and 152. So first 453. This example we will solve in
two method, first method and second method. Four 453. So what is the nearest value? 100 वैल्यू में 400 एंड 500 इसकी क्या है, राउंडिंग वैल्यू है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 500 लेंगे. देन 152. ठीक है, ये किसके बीच में आता है, 100 एंड 200 के बीच में आता है, तो हम क्या लेंगे 200 लेंगे. सो 500 मल्टीप्लाई बाय 200. हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 होगा. और यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4. हमने कितने जीरो पुट किए, 2 जीरो. सो हमें आंसर कितना मिल गया, 1 लाख. ठीक है, 500 इंटू 200 करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है, 1 लाख. दिस इज द राउंडिंग वैल्यू. नाउ इन सेकंड मेथड 453 एंड 552. हम क्या करेंगे, इसकी राउंडिंग वैल्यू हम 500 लेंगे और इसकी 100 लेंगे. 500 इंटू 100, 5 इंटू 1 5 एंड वी विल पुट 4 जीरो, क्योंकि 500 में 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो है, तो हमने क्या किया, वो पूरे जीरो पुट कर दिए. सो व्हाट इज द राउंडिंग वैल्यू, 50,000 हो गई. ठीक है, सो नाउ एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कितना है हमारा, 453 इंटू 152 है. 453 मल्टीप्लाई बाय 152. सो नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन. 2 इंटू 3 6. okay, 2 into 5 10, 1 is the carry. Then 2 into 4 8 and 9. So now we will put in one place 0 because this 5 is the place of 10. 5 into 3 50, 1 is the carry. 5 into 5 25, 25 plus 1 26, 2 is the carry. 5 into 4 20 and 20 plus 2 22. Now we will put 2 0 because that 1 is the place of 100. 3 1 into 3 3, 1 into 5 5, 1 into 4 4. Next we will start addition. 6 plus 0 6, 6 plus 0 6, 0 plus 5 5, 5 plus 0 5, 9 plus 6 15 and 15 plus 3 18, 1 is carry. 1 plus 3 1 plus 3 sorry 1 plus 2 3 and 3 plus 5 8, 2 plus 4 2 plus 4 6. So how much, 68,856 हमें क्या मिले है, एक्चुअल वैल्यू. सो लुक एट देयर विच इज़ द नियरेस्ट वैल्यू. दिस 1 lakh इज द नियरेस्ट वैल्यू. ओके, सो 68,856 इज द नियरेस्ट ऑफ 1 lakhs. ओके, नाउ let's we will start example number 4. Example number 4. 755 into 819 क्या है, 755 multiply by 890. So look at there. 755 multiply by 819. So that 755 and 819. So what is the rounding value? 755 ये किसके नियरेस्ट है, 800 के है. और 819 ये किसके नियरेस्ट है,
800 के है, ठीक है. आफ्टर मल्टीप्लाई 800 इंटू 800 वी विल गेट 6,40,000. कितना मिल गया? 6,40,000. नाउ 7,500 ये किसके नियरेस्ट है? 700 लिया है सेकंड मेथड में, और 819 किसके नियरेस्ट लिया है? 800 से. सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 56. हाउ मच गेटिंग? 5,60,000. कितना मिल गया? 5,60,000 मिल गया. नाउ लुक एट इन अवर एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी है? 755 मल्टीप्लाई बाय 819 है. सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 6,18,295. So 6,18,295 is nearest to the 6,40,000. So what is the rounding value of 6,40,000 is the rounding value. Next we will start now question number C. By rounding up one number and rounding down the other number to the nearest 10. हमें क्या करना है? वन वैल्यू हमें राउंड अप करनी है, वन करनी है राउंड डाउन. अप मतलब बड़ी और डाउन मतलब नीचे, ठीक है. नियरेस्ट द 10. सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज द 85 इंटू 42. लुक एट देयर 85 इंटू 90. सो 85 की हमने क्या ली है? अप वैल्यू ली है 90, और 42 की हमने 48 डाउन वैल्यू ली. सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन 90 इंटू 40 वी विल गेट आंसर 360. ओके. एंड आवर एक्चुअल वैल्यू क्या है? 85 इंटू 42. सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट आंसर 3,570. कितना मिल गया? 3,570. ये क्या है? हमारी एक्चुअल वैल्यू है, और हमारी राउंडिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 3,600 आ रही है. ओके. नाउ लुक एट इन एग्जाम्पल नंबर 5. 68 इंटू 92. 68 इंटू 92. सो 68 की क्या बोलते हैं? राउंडिंग अप वैल्यू. राउंडिंग अप वैल्यू विच इज 70, एंड 92 rounding down value is the 90. So after doing multiplication 70 into 90 we will get answer 6,300, and our actual value is 68 into 92. After doing multiplication we will get answer 6,256. Our actual value 6,300, and our rounding value is the 6,300, and our actual value is the 6,256. Now question number D, example number 2. But first see in question. By rounding up one number and rounding down the other number to the nearest 100. हमें क्या करना है? इसमें हमने नियरेस्ट 10 निकाला था, इसमें नियरेस्ट 100 निकालना है. एक वैल्यू हमें अप लेनी है और एक क्या लेनी है? डाउन लेनी है. सो लुक एट इन एग्जाम्पल नंबर 2. 743 मल्टीप्लाई बाय 559. 743 मल्टीप्लाई बाय 559. सो 743 की हमने क्या ली है? डाउन वैल्यू ली है 700, एंड 559 की हमने क्या ली? अप वैल्यू ली 600. सो आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन 700 इंटू 600 वी विल गेट आंसर 4,20,000. कितना मिल गया? 4,40,000. नाउ अवर एक्चुअल वैल्यू इज 743 multiplied by 559. So after doing multiplication we will get answer 4,15,337. कितना मिल गया? 4,15,337. Now look at in example number 4. 842 multiplied by 359. 842 multiplied by 359. So 842
कि हमने कौन सी वैल्यू ली है, डाउन राउंडिंग, डाउन वैल्यू ली है 800 एंड 359 की क्या ली हमने, अप वाली वैल्यू ली। यहाँ पे डाउन ली थी 800 और 400 ये हमारी क्या है, अप वैल्यू है। ठीक है, 842 की 800 इज़ द डाउन वैल्यू एंड 359 की 400 हमने अप वैल्यू ली। ठीक है, एंड नाउ एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन 842 मल्टीप्लाई बाय 359. After doing multiplication, our actual value, we will get answer 3,02,278 and our राउंडिंग वैल्यू का हमें आंसर कितना है, 3,20,000। कितना है, 3,20,000। सो हमारी राउंडिंग वैल्यू कितनी है, 3,20,000 है और हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 3,02,278. Okay, I hope all of you nicely understood lesson. Thank you and have a nice day.